तो फाइनली इंग्लिश आपके चैनल पे प्रांजल गुप्ता आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि एजुकेशनल मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है। टिंग टिंग। लेकिन यार मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ भाई। देखो, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, गलत तो सभी करते हैं, लेकिन बेचारे को रिज़ाइन करना पड़ा यार। उसके फैमिली वाले जो इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें कैसा लग रहा होगा। बट यार जो भी है, अब उसने एजुकेशन मिनिस्टर ही क्यों बना यार, वही बात है। अब कहीं रेलवे का मंत्री बनता या कहीं और बनता तो रोडें शायद ख़राब बननी होती, रेलवे का मंत्री बनना होता तो साला कोई दिक्कत ही नहीं आती। साला रेल आगे पीछे टच हो जाती है, इतने ज़्यादा कोलिजन के कारण बहुत सारी डेथ भी हो जाती है, लेकिन कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का रिज़ाइन नहीं आता। ये पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है, उसका रिज़ाइन नहीं आया। अब कह तो नहीं लोग इसका भी रिज़ाइन करवा के जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो अब रिज़ाइन करके अब प्रोटेस्ट जो है ना वो बंद हो जाना चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत लोगों ने पिज़्ज़ा बर्गर दबा के खा लिए। भाई मेरा मन करे आया तो पिज़्ज़ा बर्गर खाने का, लेकिन जो लड़कियों के साथ वहाँ पर गलत हुआ यार, मैं होता ना मैं ऐसी तैसी मार देता पुलिस वालों की, चाहे मेरी जान चली जाती। लेकिन वो जो भी गलत किया ना भाई, जो SHO थे, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, DSP थे या कांस्टेबल थे या कोई भी थे, दरोगा भी क्यों ना थे, सब लोगों को लपेट देता भाई मैं। चाहे मर के आता, लेकिन भाई सिख आदमी हो भाई, खा जाता। ठीक है, सिख तो नहीं हुआ, लेकिन भाई सिख जैसा फौलाद सीना है अपना, ऐसी तैसी मार देता। चलो एट दी एंड क्या होगा, अब एजुकेशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। मैं चाहता हूँ खान सर या अलग सर में या NV सर में कोई बन जाए, बट आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल। बट आई थिंक who will be the next education minister, he or she will be gonna changing the whole education system, and I think Narendra Modi will also take the huge action on the people who has involved in leaking the paper. And I think our education system, not in education system, in business point of view, in private sector also will be growing more, and in government job also people will definitely get the employment. And I don't think that in future people will be more unemployed, but I do think that India will definitely drastically growing, and what we are in position of fourth largest economy, I don't think that we will be in fourth, we will be on first. And this is the guarantee from my side. And the year which is going on 2026, and I think 2030 to 40, the drastic change you will gonna be seeing everybody. And I don't think that, I used to think that the money what we are earning, like like due to corruption what is going on, the money what people are earning from India, and it is going to other countries like USA, Japan, Singapore, and people are going to study over there, and the money which people has earned from the India, and the money is going out of country. I don't think in any sector or in every sector, starting with the plumber or starting with the driver or starting with the any job to engineer, doctor, or any big name you take, and the people who is working out of country, many of the people are settled down there in that country, in their country. But I think many of the people are going there for earning money for 5 years or 10 years, and they are coming back in our country. They want 2 or 5 crores, 2 to 10 crores, just because they want to earn and want to make their life sustainable, and one of the best life they want to live in future. That's why they go for 5 to 10 years. And I don't think many of the people are thinking like this. And the people who is earning in India also, like I think if someone who is in private sector, if they are giving tax, they are contributing to the society. And I think in future, in 2030 to 40, drastic change, what I really believe will be gonna coming. Okay, coming to the topic, what we have, यूज़ ऑफ कोड। चलो हिंदी में आते हैं, बच्चे हमारे थक गए कि भैया सर तो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो हम इंग्लिश हब, ये हमारा चैनल है, इंग्लिश का हमारा हब है। जैसे हमारा उसका भी हब होता है, वैसे इसका भी हब होता है। जो क्रोम पे हब देखते हो वो अब अलग होता है, ये इंग्लिश का हब है। जिस बच्चे को डेफिनेशन कर रही है, देखो हमारे पास तो हर तरह का बच्चा आता है, स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे रोडीज़ का हो, चाहे कहीं का भी हो मतलब चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप बस इंडिया में रहने चाहिए। इंडिया में रहने वाला बच्चा, पाकिस्तान में रहने वाला बच्चा, या चाहे हमारा भूटान का, नेपाल का, कहीं का भी, मेरे हिसाब से जो बंदे को हिंदी भाषा आती है
और इंग्लिश में उसे समझना है और उसकी लाइफ सेट है। लेवेटे सिस्टम। तो जिन बच्चों को क्या कहते हैं, जिन बच्चों को करनी हो क्या नाम है एक डेफिनेशन टाइप, तो वो भी कर सकते हैं, समझ लेंगे। स्टार्टिंग करते हैं इस डेफिनेशन से। कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। यार यू कुड डू दिस, यार यू कुड डू बेटर, आप अच्छा कर सकते थे, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट कि यार यू कुड स्टडी, यार आप पढ़ सकते थे, ठीक है। परमिशन कि यार कुड आई डू दिस, या ये परमिशन मतलब ये भी होती है कि परमिशन की ये पोलाइट वर्ड भी यूज़ होता है कुड। जैसे कुड यू डू दिस फॉर मी, जैसे वुड यू लाइक टू डू दिस फॉर मी। वुड भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ। परमिशन लेना, पॉसिबिलिटी होना, सजेशन देना कि सजेशन दे रहे हैं हम, है ना। जैसे शुड हैव में हमने सजेशन दिया था, शुड में पूरा सजेशन दिया था। शुड वाली वीडियो में देखिए, सब देखने वीडियो, ठीक है। कंडीशनल एबिलिटी, विश कि भाई ये चाहत है, ठीक है। आओ पहले समझते हैं, ये तो डेफिनेशन थी। आओ फॉर्मूला, नियम या सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मत समझना कुड का, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा। मैं सारे बच्चों को, सारी चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश को लेके चलता हूँ। तो पोलाइट वे, जहाँ रेस्टोरेंट में, होटल इंडस्ट्री में, कहीं भी इंडस्ट्री में पोलाइटली बात करते हैं ना हम वेटर से। कुड यू टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर फर्स्ट, ठीक है। कुड यू गिव 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, बस, है ना, होता ना। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, टी कॉफ़ी, ठीक है। तो आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, ठीक है। हम सारे एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। मैं 5 साल का था तब तैर सकता था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम 2 सेंटेंस को ही मिक्स करवाएंगे। तो आई कुड स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता था, मैं तैर सकता था जब मैं 5 साल का था। शी कुड सिंग ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर गा सकती थी। कुछ जो इंसान पहले हिंदी लिखना चाहे पहले हिंदी लिख लो, हिंदी में क्वेश्चन लिख लो पहले हिंदी में, और फिर उसको आंसर लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वे समस्या सुलझा सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ वे समस्या सुलझा सकते हैं, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, बस। और ये पास की बात आ गई तो कैन की सेकंड फॉर्म हो गई कुड। नेगेटिव बातों पे आते हैं तो कुड के साथ यहाँ पे नॉट लग जाएगा। शॉर्ट फॉर्म का हो तो कुडंट लगा देना। स्कूल वाले बच्चों के लिए हमेशा कह रखिए कि पूरा लिखना, वरना नंबर काट लेते हैं साले बदतमीज बच्चे हैं। तो होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी चलो। आई couldn't अंडरस्टैंड द लेसन, मैं पाठ नहीं समझ सका, या सका था, सकते थे, सकता था, सकते थे। अब मैं स्कूल वाले बच्चों के सारे एस्पेक्ट्स ले रखे, लेकिन मैं यार ये पहचान वाली चीज़ लिखता नहीं, क्योंकि मैं स्पोकन इंग्लिश को पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। ही कुड नॉट कम yesterday, वह कल नहीं आ सका। अच्छा, आना कर नहीं सका, आना था उसको, आया कर नहीं, ठीक है। तो ही कुड नॉट कम yesterday। तो अब ये तो पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। आ जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश, ये नहीं बोलना बस, ठीक है। इंटरोगेटिव पे आते हैं। कुड स्टार्टिंग में आ जाएगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी होगा हमारा, तो WH पहले आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ। कुड यू हेल्प मी, ठीक है। अभी पोलाइट बातें भी हैं और इंटरोगेटिव भी हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कुड शी ड्राइव, क्या वह गाड़ी चला सकती थी, ठीक है। आ जाओ। WH बहुत सारे, जिनने मेरे साथ कैन कर रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रखा है या शुड कर रखा है, तो उसके लिए हलवा है, तो मैं उसको इतना ज़्यादा समझाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। और केवल जो बच्चे कोड देखने आए उनको ही 99% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 1% थोड़ा सा क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ तो शायद उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा। वैसे तो इतना जल्दी भी नहीं चल रहा हूँ। तो ये देखो, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाला जो फॉर्मूला है अपना, अरे यार पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, अभी कराएंगे। कोड ये जो है ये कराएंगे। कोड वाला फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस WH वाला वर्ड पहले आ गया है, ठीक है। आ जाओ। जैसे मैं गाड़ी कहाँ पार्क कर सकता हूँ, ठीक है। वेयर कुड आई पार्क, तो ये पता है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि कुड केवल यूज़ होता है पास्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है रे बच्चों। कुड यूज़ होता है पोलाइट बातों के लिए भी। पोलाइट कि मैं कहाँ पार्क कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट की बात में नहीं आएगा। 90% से ज़्यादा ये पास्ट में ही रहता है। लेकिन बच्चों बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आप ये भी यूज़ करते हो पोलाइट बात के लिए। वेयर आई कैन पार्क ये भी है कि मैं किधर पार्क कर सकता हूँ, कहाँ पार्क कर सकता हूँ। लेकिन पोलाइट बात आनी ना, पोलाइट मुंह से अच्छी बातें निकलती हैं। वाई कुडंट ही कम, वह क्यों नहीं आ सका, बस आ जाओ। यूज़ ऑफ कुड,
कुड के उपयोग समझिए। पास्ट एबिलिटी में मतलब भूत काल, ठीक है, मतलब पास्ट की बात। यूज टू टॉक अबाउट एन एबिलिटी समवन हैड इन द पास्ट। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6, मैं 6 साल का था तब मैं तैर सकता था। दे कुड स्पीक फ्रेंच, वे फ्रेंच बोल सकते थे। माई ग्रैंड फादर कुड वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, मेरे दादाजी लंबी दूरी तक चल सकते थे। तो ये आ गई पास्ट एबिलिटी किसकी, कुड की, ठीक है। अब आ जाते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, जिसमें प्रेजेंट का यूज ज़्यादा है। यूज टू मेक रिक्वेस्ट पोलाइटली, मोर पोलाइट देन कैन, ठीक है। थोड़ा सा कैन को यूज कर लो, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट अच्छा आ जाता है कि भाई अच्छी बात है कि कुड यू डू दिस फॉर मी, कुड यू गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ठीक है। तो कुड यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। कुड यू एक्सप्लेन दिस, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ये अपने टीचर से यूज़ करो, अपनी गर्लफ्रेंड से यूज़ करो। जैसे गर्लफ्रेंड से यूज़ करो कि कुड यू सेटल डाउन द बिल फॉर द फर्स्ट टाइम, कुड यू नॉट आस्क मी फॉर पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल और योर मोबाइल डेटा बिल। देखना फट के 4 हो जाएगी उसकी कि नहीं बाबू 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 मैं तो बहुत प्यार करूँ। अरे ए चल झूठ बोला ना गण सी तू, ठीक है। अब पोलाइट परमिशन, हम आस्किंग, अनुमति मांग रहे हैं, अनुमति, भानुमति, बहन की मति, माँ की मति। तो यूज टू आस्क परमिशन पोलाइटली। कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। कुड वी लीव अर्ली, क्या हम जल्दी जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना कि भाई ये हो सकता है, ठीक है। यूज व्हेन समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन, मतलब ये हर रोज नहीं हो रहा है, कभी कभी हो सकता है। इट कुड रेन टू नाइट, आई थिंक आज रात बारिश हो सकती है। द ट्रेन कुड बी लेट, ट्रेन लेट हो सकती है। सजेशन दे रहा है अगला, सुझाव देने लगा है पगलू। यूज टू गिव ए जेंटल सजेशन, जेंटली। यू कुड ट्राई अगेन, तुम दोबारा कोशिश कर सकती हो बचुआ, ठीक है। ये पोलाइट आ गया। यू कैन ट्राई अगेन भी हो सकता है, बट थोड़ा सा पोलाइट आ जाता है। वी कुड मीट टुमारो, हम कल मिल सकते हैं रे बचुआ। बचुआ कंडीशनल एबिलिटी कि यदि ये हुआ तो। यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन एन इमेजिनरी और कंडीशनल सिचुएशन, समझ रहे हो कि कोई कंडीशन लग गई हम पे, मतलब एक शर्त आ गई, एक बात आ गई, एक बातचीत हो गई, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, कभी पिक्चर बची हो तो देख लो, ठीक है। आई कुड हेल्प यू इफ आई हैड टाइम, तो अब मैं ये भी पास्ट आ गया, और इफ यूज होगा तो उसके आने वाला वर्ड भी पास्ट आएगा। ये वाली इफ वाली चीज़ भी मैं आपकी पूरी क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लें आने वाली वीडियोस में। ये बस थोड़ा सा अपर लेवल आ गया, लेकिन लेवल सबके निकलेंगे उसी के जो एंड तक ठिका रहेगा, सिगरेट पी के निकला रहे। शी कुड विन, वो जीत सकती थी। इफ शी प्रैक्टिस्ड, अब क्या हुआ, एक कंडीशनल एबिलिटी आई जिसमें क्या हुआ कि वो कर सकती थी अगर वो पढ़ती। देखो जैसे मैं आई कुड गेट 90% ऑफ द मार्क्स इफ आई स्टडीड, ठीक है। क्या मतलब हो गया, मैं 90% ज़्यादा मार्क्स ला सकता था अगर मैं पढ़ता। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का ही यूज हुई, हैव भी आ सकता था ना, इफ आई हैव टाइम। ये क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये कुड तो हो गया पास्ट में, अगर ये चीज़ पास्ट की हो गई तो ये भी जो हमारा अगर है ये भी तो पास्ट में हो सकता था। अगर वो पढ़ता तो वो आगे जा सकता था, समझ रहे हो मेरे बच्चों। अगर वे अभ्यास करती तो वो जीत सकती थी। एक एग्जांपल और सोचो और लिखो, जैसे मैं बोलूं कि आई कुड प्ले इफ माई मदर गिव मी द चांस। अब मैं गिव मी द चांस भी तो बोल सकता था, गिव बोल देता, क्या हो जाता, नहीं बोल सकता था ना बच्चा। यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म लगा दी थी, कुड लगा था, लगा था। अगर मैं ये बोलत कि आई कैन स्विम इफ माई मदर अलाउज, माई मम्मी अलाउज, ठीक है। अब ये सही हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुड कर दूंगा तो यहाँ पे भी अलाउड करना पड़ेगा मेरे बच्चों। आजा मेरे बच्चों। अब कुछ चीज़ जो है मैंने आपको बता रखी है, जैसे मे हैव, मतलब ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये शायद हो सकता है, माइट बहुत कम प्रभावना है कि, जैसे मैं कह सकता हूँ कि उसने शायद चोरी की होगी, ही माइट हैव स्टोलन,
चोरी की होगी, मैं बता रहा हूँ। जैसे पेन, जैसे ही माइट हैव स्टोलन द पेन। अब मेरे को थोड़ी श्योरिटी है तो ही मे हैव स्टोलन द पेन। अब मैं पक्का हूँ तो ही मस्ट हैव स्टोलन द पेन। तो मैंने आने वाली 3-4 वीडियोस का भी आपको कंसेप्ट अभी 2 मिनट के अंदर बता दिया, समझ रहे हो। और जब मैंने, आपने देखा होगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ये हमने क्या कर रखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंप्लीटेड माई टास्क। तो अब इसमें क्या हो गया मेरे बच्चों, ये आपका एक कंसेप्ट आ गया जिसमें हैव लग जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म लग जाती है मेरे बच्चों। ओके मेरे बच्चों, तो कुड हैव आ गया, पोस्ट पॉसिबिलिटी, पोस्ट नहीं है पास्ट है, तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी की भैया ये तो तुम कर सकते थे बच्चों। तो आई कुड हैव वन द मैच, मैं मैच जीत सकता था पर जीत नहीं पाया। अगला, ओहो ये तो इंग्लिश लिखी नहीं है तो ये हिंदी क्यों लिखी है भैया, यही तो सोच है आप लोगों की। मैं मैच जीत सकता था, आई कुड विन द मैच ऑल्सो, इसमें आप बोल सकते हो आई कुड विन द मैच, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी थी वो उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की थी। तो आई कुड हैव वन द मैच उस, देखो अगर मान लो क्या हो रहा है, एक रेस चल रही है, रेस है 15 मिनट की रेस है। अब वो रेस जो थी वो 15 मिनट की तो थी, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ आई कुड विन, तो इसका मतलब है मैं जीत सकता था। तो एक और बार मौका आएगा क्या, नहीं रे बच्चा, उसी 15 मिनट के अंदर जीतना था। तो उसी 15 मिनट के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो मेरे बच्चों, तो आप क्या करोगे, जीत जाओगे। तो अब ऐसा मत कहना कि यहाँ पे जीत नहीं पाया कि इंग्लिश तो नहीं लिखी बेटा, इसका मतलब ये है कि वो जीत नहीं पाया था, एग्जाम्पल के रूप में है, अगले में नहीं है। देखो एक्स्ट्रा हिंदी, परेशान मत होया करो मेरे बच्चों। तो वी कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच सकते थे मेरे बच्चों। एक और एग्जाम्पल लिख लो, मन में याद आ गया है। यू कुड हैव ब्लॉग्ड हर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन हो गया है ये। अब ये सीजेपी और बीजेपी से भी बड़ा क्वेश्चन हो गया है, कर लेना बच्चों, समझ गए होंगे मेरे बच्चे। 6 पेज की पीडीएफ है, पता ही नहीं थी हमें। कॉमन मिस्टेक, और ये गलती मत कर देना, कुड नॉट को कुडंट करने वाली ठीक है, लेकिन आई कुडंट स्विम ऐसा मत कर देना, सही है वैसे तो, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुड के साथ टू लगा देंगे, ऐसा मत करना बच्चों। ही शी इट हो तो उसके साथ सोचेंगे अरे भैया ही शी इट सर ने पहले बता रखा था, एस या ईएस आ जाता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो डू या डज आ जाता है, ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चों, गलत मत कर देना, बड़ी बुरी तरह नंबर से खट हो गए और ख़त्म हो जाओगे। ही शी हिट हो या एस या ईएस मत लगा देना। शी कुड सिंग, बस सही हो गया। आई कुड स्विम, ING मत लगा देना, सेकंड थर्ड फॉर्म कहीं मत लगा देना, ये फोर्थ ने हो गई तो ऐसे ES कहीं मत लगा देना, नॉर्मल चल रही है बातचीत तो नॉर्मल चलन देना। यहाँ पर आई कुड हैव वेंट, अरे गो की थर्ड फॉर्म तो गोन होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ओके मेरी जेंट, ठीक है मेरे हेंट, यहाँ पे देख सकते हैं सही फॉर्म ऑफ आंसर्स। ओके मेरे बच्चों, कैन और कुड में बहुत अंतर है क्या, नहीं मेरे बच्चों, देखो प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो सकती है तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगी, प्रेजेंट की बातें होगी तो पोलाइट परमिशन होगी। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये मत कहना कि यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे पास्ट है, नहीं मेरे बच्चों। कुड जो है वो प्रेजेंट में भी यूज होता है, लेकिन बस आपको पोलाइट रहना है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम होती है। जैसे आई कैन डू डांस, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कुड डू डांस, मैं डांस कर सकता था, बस मुझे मौका नहीं मिला। अबे साले, मौसी और फूफा तुझे बुलाते रह गए और तेरी अम्मा मरी पड़ी थी, फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी, बहन की खाऊंगी, उंगली खाऊंगी, लेडी फिंगर खाऊंगी, औरतों की उंगली खाऊंगी, भिंडी खाऊंगी। आई कैन स्विम, ठीक है। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना होता है। अगर आप एक पास कर रहे हो आई कुड स्विम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद व्हेन या इफ लगा के उसको पूरा बताओ कि क्या हुआ है मैटर, ठीक है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या है नॉर्मल बात, इसमें थोड़ी पोलाइट हो गई कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, रात के 3 बज रहे हैं, आप मेरे घर पे आइएगा, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, आइए ज़रा थोड़ा सा बातचीत करेंगे, थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के, ठीक है। 10 सॉल्ड एग्जाम्पल है।
आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 6। मैं तैर सकता था जब मैं 6 वर्ष का था। तो यहाँ पे हिंदी जो मैंने बोली उसको लिखने का कष्ट करें, स्क्रीनशॉट लेके लें, क्या या अपनी रफ कॉपी में लिखें। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ख़त्म। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे ING की तो मना करी थी, यहाँ पे मीट लिखते हैं बस। शी कुड नॉट अटेंड द मीट, अबे तुम्हारी बहन का नीट मारूं। अरे भैया, शी कुड नॉट अटेंड मीटिंग। मीटिंग एक मीटिंग है बच्चों। आज तक कभी किसी होटल में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो? मीटिंग होता है मेरे बच्चों। इट कुड रेन टुडे, ये पॉसिबिलिटी आ गई थोड़ी सी कम की। कुड आई यूज़ योर फोन, येस यू कुड। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता था? हाँ तुम कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर पाओगे। अभी तो मैं अपनी मीटिंग कर रहा हूँ, मैं TCS में नौकरी करता हूँ, मेरी 22,000 की सैलरी लगी है। ले भाई। वी कुड विन इफ़ वी ट्राइड, हम जीत सकते थे अगर हम ट्राई करते तो सालों बहन के बच्चों, ट्राई क्यों नहीं करा माँ के बच्चों। ही कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 10, वह उस टाइम पे इंग्लिश बोल सकता था जब वो 10 साल का था। अब उसकी मम्मी और बहन एक हो गई हैं, माँ और बहन उसकी एक हो गई हैं, तो अब उसकी अम्मा बहन एक भी हो गई है, अम्मा और बहन भी एक हो गई है। अब इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, 10 साल से ऊपर नहीं बोल पाता है वो बहन का भैया। दे कुड हैव फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे हैव के बाद थर्ड फॉर्म लग गई होगी, बच्चे तो पागल ही हो गए होंगे, ये तो बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया। कुड शी ड्राइव, yes she could, but what she does, she use the indicator of the left one and she moves on the right one. It is not her fault, it is the fault of the person who is in front of her. That's why she is not able to do and she is not able to ride or drive properly. But what she does, she is a girl, that's why nobody comes to her and is not start doing the protest related to her. It is not her fault, it is the fault of that person who is in front of her and who is behind of her also, who is seeing and looking at her that she has given the indicator of left one and she is moving on the right one. It is not her fault. I am repeating it again. Thank you sir. You could ask your teacher, तो अपने टीचर से पूछ सकते थे यार। ये ट्यूशन टीचर बोलता होगा ना आपका, अपने स्कूल वाले टीचर से पढ़ लेते। स्कूल वाला टीचर कह रहा है ट्यूशन वाले से पढ़ लेते। दोनों भाई, स्कूल वाला टीचर, ट्यूशन वाला टीचर और स्टूडेंट तीनों हमारी वीडियो देख रहे हैं। बोल मेरा वाला वो कब तबा, वो आज भी यार मेरा तब तबा दब दबा। अब हमने सारे बच्चों को ले रखा है, तो यहाँ पे क्या है, कहाँ कुड यूज़ होगा, कहाँ कुडंट यूज़ होगा, कहाँ पे कैन यूज़ होगा। ये तो कैन वाले हमने पिछले में करा रखे हैं, तो कैन तो कहीं यूज़ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करें फिर ब्लैंक्स। आइए 5 क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। ये 10 तक क्वेश्चन हो गए, ट्राई करिएगा। आ जाओ प्रैक्टिस करा लूँ मैं, ठीक है। मैं 5 साल की उम्र में तैर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज 5। बस तो इन क्वेश्चनों को ट्राई करें, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए बच्चों, बताऊंगा एक एक को। क्या आप यह समझा सकते हैं, कुड यू अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड दिस। ये कुड यू एक्सप्लेन दिस, सॉरी। मेक मी अंडरस्टैंड मतलब होता है किसी मुझे समझाना, ठीक है। बताऊंगा मेक मी अंडरस्टैंड, मेक यू एक्सप्लेन, मेक का पूरा, ठीक है। 10 तक क्वेश्चन हो गए, आ जाओ। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बच्चा स्कूल का वो भी देख सकता है, और जो कॉम्पिटेटिव वाले हैं वो वीडियो बंद करके अब आगे बढ़ जाए, ठीक है। Could is the past form of can, but it has several other uses in present and future contexts. Always use the base form V1 after could, मतलब could के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करो। बट अगर if you are using could along with have, then you have to use and you must use third form after that. Understood? Okay. Never use to after could. टू मत यूज़ करना मेरे बच्चों, कॉमन बताया था मैंने, कॉमन मिस्टेक्स। यूज़ कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपके शायद मैंने रिवीजन चल रहा है, रिवीजन आ गया पूरा वीडियो, ठीक है। कुड इज़ मोर पोलाइट देन कैन व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट और आस्किंग परमिशन, तो हमने करवा रखा है। सब्सक्राइब कर देना इंग्लिश अब चैनल को, ब्लू में भी और रेड में भी, ठीक है।
तो कोड वाले आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों, आपने कैन के बाद कोड, कोड के बाद मैं आपके अब अगले वीडियोस में मे, माइट, मस्ट, इन पहले तीनों एम को कराऊंगा, तो फिर आपको अंदर से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके मेरे बच्चों, हमारा कोई भी और भी हमारा कुछ भी नहीं है, फ्री में हमारा चैनल चल रहा है। आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। बट व्हाट यू शुड डू, इफ़ यू मीट मी, प्लीज़ प्रोवाइड मी ए लार्ज साइज पिज़्ज़ा, बिकॉज आई एम बीइंग अ फूडी पर्सन, आई ऑलवेज बिलीव distributing the food, it is good thing if you are doing for someone who is giving you the right information and right guidance, and they are making you study and they are making you good explanation in a subject where it is everybody, like everybody is paying for it, but in school, in college, in tuition, and I am giving you in free of cost. Along with that, I have given you the PDF with practice questions, and it is completely free of cost. Obviously, I will definitely open the AdSense. I want the money from the AdSense just because I want to promote something in my life. I will definitely promote my wife in the fashion iconic. चलो यार, इंग्लिश हो जाती ना, मैं मज़ा आया था। चलो बच्चों, ओके मेरे बच्चों, कोड